PSI. On behalf of PSI, you are all welcome to this webinar presented by one of the senior most and respected photographer, शिव जी. जैसे उनका नाम है वैसे उनका काम है. वेरी रेप्यूटेड, बहुत ही नॉलेजेबल है, वेरी गुड टीचर. तो वो आज हम लोगों के लिए स्पेशल वेबिनार प्रेजेंट कर रहे हैं. श्री राजेंद्र वाघमारे जी अपनी जॉइंट सेक्रेटरी है. He is welcoming and hosting. Vaghmare ji, please take over. Thank you, Panjay ji. Good evening and welcome all the viewers now today for this special webinar. Usually we have a webinar on every Friday, but this is a special subject, and so we decided to have one more webinar this weekend. And Shivji Joshi has so graciously agreed for this webinar, and we are going to learn from him how to shoot and how to prepare a portfolio. It's a very specialized subject. But before proceeding for the webinar, I would like to give a brief introduction about our respected speaker, Shivji Joshi. His name is Dr. Shiv Narayan Joshi, and we all very lovingly call him Shivji. And he is currently based in Jodhpur. He is MA in philosophy, gold medalist, and a PhD. He was also the professor and head of the Department of Philosophy at JNV University of Jodhpur. He did a doctoral thesis on a critical study of dualism and wrote a book on a critique of Indian dualism. Published over 50 research papers and articles and guided 19 doctoral research scholars for PhD. He is also known as one of the best photographers in India. He has over 250 awards with many gold medals bagged in various international exhibitions. About 1,000 of his photographs are also accepted in national and international photography salons. His name has also been mentioned in Great Picture Contest 1998 and Popular Photography USA 2000. He was conferred by the Artist Federation of International Art of Photography in 1990 as honorary FIP, honorary fellow by Andhra Pradesh Photography Academy, honorary FAPA, honorary ECPA, honorary FPAC, SOP, and honorary PSGSPC. Sir has been facilitated by Rajasthan State Lalit Kala Academy and Bikaner Photojournalists Association. His photographs have been published in Photography Yearbook, England, from the year 1989 to 2002. Popular Photography USA, Practical Photography England, Amateur Photographer, Practical Photography England, Popular Photography USA, Amateur Photographer England, Pentax Family Magazine, Australian Camera Craft, Pia Bainia. Some of his pictures are published in a special issue of National Geographic magazine also, and in educational books of National Geographic magazine. His pictures are also published in the calendar of Nikon in 2010. He's such an illustrious personality in the field of photography. लेकिन मैं ये कहूँगा, ये तो सारी बातें होंगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शिवजी जोशी जी ये फोटोग्राफी जीते हैं. फोटोग्राफी उनके नस 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 में समाई हुई है. सो आज हम उनसे सुनेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है. हमारे बहुत सारे जो फोटोग्राफर दोस्त हैं वो कई डिस्टिंक्शंस लेते हैं, लेकिन वो बेस्ड होते हैं आपके नंबर ऑफ एक्सेप्टेंसेस एंड अवार्ड्स गेन्ड इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स. लेकिन पोर्टफोलियो बेस्ड कुछ कॉम्पिटिशन्स होती है, कुछ डिस्टिंक्शंस होती है. जैसे अपन PSI भी अपने डिस्टिंक्शंस देती है, LPSI, APSI एंड FPSI. तो ये जो डिस्टिंक्शंस है वो पोर्टफोलियो बेस्ड है और इसके लिए अलग से काम करना होता है, अलग से उसकी सोच होती है और सब्जेक्ट ढूंढना होता है, उसके ऊपर रिसर्च करना होता है. तो ये सारी चीज़ें आप आज हम सर जी से सुनेंगे. तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग को सभी को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा. तो सर जी, शिवजी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन शुरू करें.
हेलो। शिव जी का है। हाँ हाँ, उनको अनम्यूट करता म्यूट है। हूँ। अनम्यूट करना चाहिए उन्होंने। उनका वीडियो और ऑडियो दोनों बंद है। हाँ सर। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। या हाँ, आवाज आ रही है? यस, हेलो। बराबर बराबर आ रही सर। हाँ हाँ मित्रों, मेरा नमस्कार आप सबको। और आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बिल्कुल एक अनौपचारिक बात करूं आपसे, इनफॉर्मल। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। आपको मैं अपना वो तो जो पोर्टफोलियो है लोगों को वो तो दिखाऊंगा ही, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं अनौपचारिक बात करने से मुझे ऐसा लगेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है हुआ ये कि जजिंग करते समय लोगों के मैंने देखा बहुत अच्छी फोटोज थे, बहुत बढ़िया फोटोज थे, पर उनका जो अरेंजमेंट है, उनका सीक्वेंस है, वो ठीक से नहीं किया कुछ लोगों ने। कुछ लोगों ने जो उसका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, वक्तव्य होता है उसके पीछे। देखिए, मैं एक बात कहूँ, मुझे इंग्लिश बोलना ज़्यादा आता नहीं है, लिख तो लेता हूँ, मैं पढ़ भी लेता हूँ, पर बोलने का अभ्यास नहीं है। तो मैं हिंदी में बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ दिक्कत नहीं सर, आराम से। हाँ। तो जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, वक्तव्य है उनका, वो उससे रिलेवेंट नहीं है। तो बहुत अच्छी फोटोज होते हुए भी वो उसके एकदम से बाहर निकल जाती है। कई बार खूब हुआ, तो मुझे मेरे मन में बहुत थोड़ा कष्ट भी हुआ कि देखो यार, बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं, पर ये एक ढंग से नहीं कर पाने से उनका सारा जो है वो हो जा रहा है। तो खूब सारा फिर थोड़ा कोशिश किया, प्रयत्न किया करके सब ये बनाया। क्या है कि पोर्टफोलियो बनाना एक हाईली टेक्निकल चीज है, ये सही बात है। आप बहुत बढ़िया फोटोग्राफर हैं, पर आप अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं, तो आप जो अगर डिस्टिंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, या कहीं कोई मान लीजिए कोई है जो थीम बेस्ड है और जहाँ पोर्टफोलियो मांगते हैं, तो वहां भी आप अच्छे से नहीं कुछ कर पाएंगे। तो फोटो अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, पर उन फोटो को पोर्टफोलियो बनाने की एक जो कला है, जो आर्ट है, वो भी हमें आने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि हम हमारे इसमें अपने कुछ अपने जो इंडियंस हैं उनके पोर्टफोलियो भी मैंने लिए हैं, जो कुछ बाहर के लोग हैं उनके मैं पोर्टफोलियो लिए हैं। एक तो अपने अनिल विशाल सिंह जी है, वो बैठे ही हैं, उनका पोर्टफोलियो है। तो मैं ये सारे पोर्टफोलियो बता करके आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या इन पोर्टफोलियो में खास बात है जो ये उनका पोर्टफोलियो बराबर सक्सेसफुल हुआ है। यस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो ये क्या बार बार हो रहा है? हम वो एक चित्रों का एक समूह हम कहें उसको, एक सीरीज, एक श्रृंखला है, और वो उस श्रृंखला में जो पिक्चर्स हैं, जो फोटोज हैं, वो इस ढंग से अरेंज हैं
कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पोर्टफोलियो is a series of cohesive images arranged in a consistent manner with unifying theme, presenting the style of an artist. इसमें देखिए 3 बातें हैं। एक पोर्टफोलियो इज अ सीरीज, ये एक श्रृंखला है, इमेजेस की श्रृंखला है। और वो कैसी श्रृंखला है? कोहेसिव है, माने इस प्रकार की वो फोटोज हैं जो खुद में खुद एक दूसरे से ग्लू है, जुड़ी हुई है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक फोटो के बाद में दूसरी फोटो है वह एक दूसरे कहें कि दोनों फोटो में कोई गैप आ जाता है, कोई एक अंतराल आ जाता है। नहीं, वो सारे फोटो एक ही स्टोरी कहने वाली है, एक ही बात कहने वाली है। तो वो कोहेसिव है और कंसिस्टेंटली बराबर निरंतर एक पहली फोटो से लेकर के आखिर तक, अंत तक वो एकदम से जुड़ी हुई। और उनमें जो यूनिफाइंग एलिमेंट है वो कौन सा है? वो होता है थीम। तो मित्रों, पोर्टफोलियो वह एक पर्टिकुलर, एक विशेष थीम उसको लेकर के चलता है और उसके आधार पर हम उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी फोटोज का चयन करते हैं। और इस प्रकार से चयन करते हैं कि कहीं भी एक भी फोटो ऐसी नहीं हो जो थीम है उस थीम को हाईलाइट न करने वाली हो, उसको नहीं बताने वाली हो। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी तक सर आपने शेयर करना शुरू नहीं किया ना? स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ, वो कर रहा, वो कर दिया है। ठीक है, हो गया? नहीं सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बार बार क्यों हो रहा है? हाँ, ये उसको क्लिक कीजिए। यस, बराबर। ना उसी को? ना उसका राइट वहाँ पर। यस वर्ड फाइल है ना सर, आपकी वर्ड फाइल। हाँ, अरे हाँ, वर्ड फाइल। हाँ, यस हाँ, यस, हाँ, ठीक है सर, पूरा बराबर। अच्छा, अब इसके साथ में एक होना चाहिए, पोर्टफोलियो शुड बी बैक्ड बाय रेशनल इंटेंट ऑफ द आर्टिस्ट। ये इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इंटेंट क्या है? इंटेंट उस आर्टिस्ट का वक्तव्य है, इंटेंट उसका वो मकसद है, वो उद्देश्य है, उसका वो किस पर्पज से, किसके लिए वो बना रहा है और वो क्या कहना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि वो फोटोज के द्वारा क्या कहना चाह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कहते हैं। और ये बहुत ही रिलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर भाषा में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और एक तरह से ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज करना, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत दिखाता हूं। मुझे वो पूरा पोर्टफोलियो हर लिहाज से बहुत बढ़िया लगता है। मैं आपको एग्जांपल बतलाना चाहता हूं। The meaning of rational intent is that statement of artist should be put in such a manner that it justifies effectively the selection of images based on specific purpose and or theme. An irrelevant or weak statement fails to justify the selection. तो आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट और जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए आपके इमेजेस के सिलेक्शन का, और वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। अब देखिए, ये एक है, हमारे एक मित्र हैं, आप भी जानते होंगे, ये पीएसए के कोई एक डिवीजन के कुछ हैं भी, मोहम्मद अली सालिम है। और मैंने इनसे अनुमति लेकर के लिया था। ये है, इन्होंने सिल्वर पीएसए अप्लाई किया था, तो ये इन्होंने पोर्टफोलियो किया था।
और ये पोर्टफोलियो का इनका हैंगिंग प्लान है। ये जो बतलाते हैं कि भाई किस ढंग से अरेंज होगा, किस ढंग से इमेजेस दिखाएंगे, वो सारा का सारा इन्होंने दे रखा है। इमेजेस स्ट्रिक्टली इसी आधार पर होनी चाहिए। अब इनका देखिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में बोलता हूं, बहुत बढ़िया, क्या बात कह रहे हैं ये। अब इनका जो थीम है इसका आपके प्रेजेंटेशन का पोर्टफोलियो का, वो है बैलेरिना ड्रीम्स। एक जो डांसर है उसका वो ड्रीम वो बतला रहे हैं, वो उसका स्वप्न क्या है, वो क्या होना चाह रही है वो बतला रहे हैं। अब वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं बेले को। पहले बेले को डिफाइन कर रहे हैं। बेले इज एन आर्ट फॉर्म क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बहुत शॉर्ट में उन्होंने एक लाइन में उन्होंने बात बतला दी, अब ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब दूसरा कहते हैं, आई ट्राई टू डेपिक्ट द एक्सप्रेसिव belly dancer by capturing the ballerina's emotions along with her dance movements. दूसरी बात उन्होंने ये बतलाई है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में मैंने कोशिश की है, क्या कोशिश की है कि वो जो बेले डांसर है वो जो एक्सप्रेस करती है अपने इमोशंस को अपने हाव भाव के द्वारा, अपने बॉडी की लैंग्वेज के द्वारा और दूसरे अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा, मैंने उसको कैच करने की, पकड़ने की, दिखाने की कोशिश की है। ये इन्होंने दूसरी बात कही है। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं, थ्रो हर फ्लोइंग मूवमेंट्स एंड इमोशंस शी ट्रांसफॉर्म्स हरसेल्फ फ्रॉम ए ब्लूमिंग फ्लावर टू फ्लोटिंग स्वान इन हर ड्रीम वर्ल्ड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो बेले डांसर है वो अपने फ्लोइंग मूवमेंट्स, जो शरीर की गति है एकदम से, और जो उसके नृत्य के जो हाव भाव हैं, नृत्य के जो भाव भंगिमा है, उसके द्वारा और इमोशंस के द्वारा वह अपने स्वप्न लोक में एक खिल रहे पुष्प से स्वान की ओर ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। तीसरी बात उन्होंने ये बतलाई, क्या बतलाई, बहुत संक्षेप में, कि डांसर अपने हाव भाव भंगिमाओं से और अपने इमोशंस के माध्यम से वो यह महसूस कर रही है कि वह एक खिलते हुए पुष्प से एक स्वान हंस बन रही है। तो तीन बातें इन्होंने बताई। पहले बेले डांस क्या होता है, दूसरा बैलेरिना क्या कर रही है वो बताया, और नहीं, वो जो फोटोग्राफर है वो क्या उन्होंने इसमें पोर्टफोलियो में किया दिखाया है वो, और तीसरा कि उसके माध्यम से वो क्या बतलाना चाह रहे हैं। ये तीन बातें बताई है। अब हम देखेंगे कि क्या इनके पोर्टफोलियो में सारी बात स्पष्ट हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये सही करवा दी है। हाँ, ये सही। हाँ, तो ये तो हैंगिंग प्लान इनका, और ये देखिए इमेजेज हैं बैलेरिना की फ्लोर से। आप थोड़ा सा देखेंगे, जो इसने अपनी ड्रेस पहनी है और जिस रंग से वो हाव भाव कर रही है, वो एक फ्लावर का आभास दे रही है। बहुत सुंदर, ये इनमें भी ये फ्लावर ही दिख रही है। और ये जो है, अब यहां से ये ट्रांजिशन शुरू हो रहा है। यहां से इसका ट्रांजिशन शुरू हो रहा है। और अब देखिए ये ट्रांजिशन यहां
ये भी फ्लावर है, ये हंस की मुद्रा आई, ये उड़ते हुए हंस की मुद्रा आई, ये हंस की मुद्रा, ये हंस की नाना प्रकार की मुद्रा, ये देखिए, और ये देखिए, बहुत सुंदर, ये तो बिल्कुल फ्लाइट है हंस की। 15 इमेजेस चाहिए थी इन्होंने, 15 इमेजेस में इन्होंने जो कहा वो बहुत अच्छे ढंग से करके दिखाया। तो ये मेरी दृष्टि में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, और इसमें सारी बातें जो हैं वो जो होनी चाहिए वो इसमें है। तो पोर्टफोलियो क्या है वो मैंने आपको इस पहले प्रेजेंटेशन से मैंने बताया। अब मैं आगे चलता हूं और मैं ये बतलाता हूं कि आपके पोर्टफोलियो का कोई कोई पर्पज होता है, उस पर्पज को लेकर के आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। Purpose is the starting point of any portfolio. Before selection of images, one should be well aware about her purpose of submitting the portfolio. You may submit portfolio either for photography distinction for national body like FIP, or international distinction of institutions like FIEP, RPS, PSA, or for participation in theme-based photo contests. यानी आप या तो अपने डिस्टिंक्शन के लिए आपका पर्पज हो सकता है, और डिस्टिंक्शन भी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है आपके मेनली 3 हैं जो डिस्टिंक्शन देती है, आपका FIEP है, आपकी RPS है, और आपका इनका वो फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका है, PSA है। तीनों के अपने अपने रूल्स हैं, तो जो भी है, तो इनके लिए अगर आपको डिस्टिंक्शन के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, ये पर्पज है, या आपको कोई बड़ा कॉन्टेस्ट है मैग्नम जैसा, या और भी कोई बड़ा कॉन्टेस्ट है जहां कोई एक थीम है, मान लीजिए थीम दे दिया उन्होंने हैप्पीनेस, या आपको दे दिया वाटर, या और भी कोई वो दे दिया, या कोई आपके कई अलग अलग प्रकार के फोटोग्राफी जनर के इसमें रख दिए हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो वो आपने दीजिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से मैं किस थीम को लेकर के आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यदि आप FIEP, RPS या PSA के डिस्टिंक्शन के लिए बना रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें आपके फोटोग्राफी जनरे हैं, फोटोग्राफी के अलग अलग सब फोटोग्राफी है, जैसे ट्रेवल फोटोग्राफी है, आपके फोटो जर्नलिज्म है, आपके पिक्चरल फोटोग्राफी है, आपके पोर्ट्रेचर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, कई इस तरीके से आपके वो हैं। तो आप उसमें से किसके लिए आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर व्हाट इज ट्रेवल फोटोग्राफी। अगर आप ट्रेवल फोटोग्राफी क्या है उसमें क्लियर नहीं है, और ट्रेवल फोटोग्राफी में आप दूसरी प्रकार की इमेजेस डाल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप फोटो जर्नलिज्म है वो क्या है उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो भी फोटोग्राफी के अलग अलग जनरे हैं, जो फोटोग्राफी की अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं को आपको बहुत अच्छी तरह और कॉन्टेस्ट में कोई थीम है तो उस थीम को सबसे पहले उस थीम को अच्छी तरह से समझिए, वो क्या चाहता है, थीम के बाद में वो क्या मांग रहा है हमसे, उसको समझ करके फिर आप सिलेक्शन करिए। तो ये एक हो गया आपका पर्पज जो बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको। अब मैं आपको 2 पोर्टफोलियो बताता हूं जो थीम बेस्ड है, पर्पज बेस्ड है। एक जो है वह है मैग्नम का है, और ये फोटो जर्नलिज्म का है, और इसने कैसे किस तरह से किया है ये देखिएगा। ये एक जेसन फ्लोरियो है यूके के, उनका ये विनर है, ये विनर रहे 2017 के, और इनका जो थीम है वह है
डेस्टिनेशन यूरोप, ये इनका अपने थीम दिया है। मतलब यह है कि जो वहाँ लीबिया, सीरिया, यहाँ कुछ गृह युद्ध हो रहे थे, यहाँ से लोग भग कर के और वो यूरोप की ओर जा रहे थे, और वो किस ढंग से कष्ट उठा करके जा रहे हैं उसको इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया है। और क्या होता है कि वो जो कुछ तस्कर हैं, स्मगलर हैं, जो ऐसे जो रिफ्यूजीज हैं, उन रिफ्यूजीज को आपके झांसा देते हैं कि हम आपको ले जाएंगे, और वो नाव में जितनी क्षमता होती है उससे कहीं अधिक संख्या में वो उनको बैठा करके वो ले जाते हैं, और वो इतने कष्ट में होते हैं कि क्या पूछे। और बीच बीच में कभी कभी ये होता है कि वो जो छापामार करने वाले या जो उनको बचाने वाले जो होते हैं वो उनको पकड़ लेती है, कर लेती है, उनको छोड़ा लेती है, कई सारी बातें होती है। वो सारी बात इसने बताई है। मैं एक इसका जो थीम वो पढ़ के बताऊंगा, बाकी सब वो एक जैसे ही है। ये इनका एक फोटो है, पहला फोटो है, ध्यान से देखिए आप। और इसके नीचे इन्होंने लिखा है, ऑन बोर्ड ए फिशिंग बोट 30 miles off the coast of Libya, a Bangladeshi man begs to be released from the overcrowded hold of boat where he was packed with 150 men in slave ship-like conditions. The boat carried 414 migrants and refugees attempting to reach Italy. The migrant boat was intercepted by rescue ship run by NGO Migrant Offshore Aid Station, and all the people on board were evacuated. ये इन्होंने इस फोटो के लिए ये इस आदमी का चेहरा देखिए, ये बाहर निकलने के लिए बहुत अपील कर रहा है, बड़ी हालत की खराब हो रही है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत कुछ बतलाना है। ये इस पोर्टफोलियो का पर्पज है। आप हम इमेजेस देखते हैं और वो हम देख के बताते हैं क्या ये डेस्टिनेशन यूरोप का पर्पज बिल्कुल सॉल्व करता है। 8 इमेजेस इन्होंने इसमें रखी है। इसकी रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 10, उसमें इन्होंने 8 रखी है। आप इमेजेस ध्यान से देखते रहिए, मैं अब ये सब नहीं पढ़ूंगा। ये मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। The same Turkish smuggler is made to look at the bodies of 3 Syrian refugee children. ये आपका स्मगलर है जो बोट में ले जा रहा था, और उसकी लापरवाही से, उसके लालच लोभ से वो जिस संग से ले जा रहा था, ये 3 बच्चे मर गए। ये उनका शव है, और वो उनको दिखा रहे कि तुम देख, तेरे इस नालायकी के कारण से, तेरी इस ह्यूमन तस्करी के कारण से क्या हालत हुई है, ये इसको बता। बहुत बढ़िया फोटो है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग पिक्चर है। तो देखिए मित्रों, जब भी पोर्टफोलियो बनाए ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होनी चाहिए। ये फोटो देखो आप, क्या इनके इमोशनल फोटो है, क्या इनका भाव है, इनकी जो वरी है वो चेहरे पर सारे सब दिख रही है। ये देखिए अब क्या लाइटिंग है, क्या टोन है, ये मैं सब आगे बताऊंगा। ये क्वालिटी, एकदम क्वालिटी, टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए। आहा, देखो आप कैसे एक दूसरे पड़े हुए लोग हैं, ये क्या हालत हो रही है। और आप देखिए ये जो राजनीति है, इस राजनीति में मनुष्य, मानवता कितना कष्ट उठाती है, ये आप इन फोटो के द्वारा देखिए। तो मित्रों, ये एक पहला फोटो मैंने, पहला पोर्टफोलियो आप मैंने आपका बताया पर्पस के हिसाब से, है ना, ये थीम डेस्टिनेशन यूरोप। अब दूसरा है, ये एक डाउगी वालास करके हैं, और ये स्ट्रीट सीरीज का है, ये भी मैग्नम का है, और ये भी विनर हैं। बहुत अच्छे फोटोज हैं, स्ट्रीट की है, सारी की सारी स्ट्रीट की हैं। मतलब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी किसको कहते हैं वो आपको अच्छी तरह से, हाँ बोलिए। हेलो, मुझे कहा क्या? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आप फोटोज देखिए आप,
ये स्ट्रीट फोटोग्राफी हैं सारे के सारे। ये दूसरा पोर्टफोलियो पर्पज के हिसाब से। हर एक फोटो पर अपन चर्चा कर सकते हैं, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बहुत कुछ करना है। बाकी हर एक फोटो पर बहुत अच्छी अच्छी फोटो कर सकते हैं। एक फोटो जहां जहां करनी होगी मैं जरूर बोलूंगा। ये इमोशंस देखिए, बहुत कुछ ऐसी घटना हुई है। ये एक फोटो जो है स्ट्रॉन्ग फोटो, इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक विजुअल टेंशन उत्पन्न करता है व्यूअर के मन में। एक क्वेश्चन उठाता कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या इन्होंने ऐसा देखा कि ये रुआसी हो गई, और वो भी जो है वो उदास है, रोने जैसी हो रही है। वेरी स्ट्रॉन्ग फोटो, वेरी स्ट्रॉन्ग फोटो। ये एक जगह है, ये सारी फोटो एक ही जगह की फोटोज हैं। हेरोडस नाम है उसका, हेरोड ये जर्मनी की है शायद। नाउ अब देखिए, जो तीसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है जो हमारे पोर्टफोलियो के इमेजेस को जोड़ता है, ग्लू की तरह, गोंद की तरह चिपकाता है एक दूसरे से, या यूं कहें कि फूलों के धागा की तरह, या जो माला है उसके जो धागा है वो जो मनके हैं उनको जोड़ने वाला तत्व क्या है? तो फूलों में धागा है, माला में भी वो धागा है, जोड़ने वाला है आपका। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो का धागा है कॉमनलिटी, साम्यता, साम्यता। और वो साम्यता क्या है? किसकी साम्यता है? थीम। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थीम। किस थीम को लेकर के आप सिलेक्शन कर रहे हैं? थीम इज वे वो कम्युनिटी डिसाइड करता है। तो ये जो साम्यता है, ये कम्युनिटी है, ये एक ग्लू का काम करता है। जो आपकी 10 फोटोज हैं या 15 है या 20 फोटोज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में, उनको सारे के सारे को एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ता है और बीच में कहीं गैप नहीं आने देता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं भी कोई गैप नहीं आए। उसको देख करके लगे अरे यहाँ अभी एक स्टोरी चल रही थी और अब ये क्या हो गया, आगे की फोटो ये जुड़ नहीं रही है। तो ऐसा गैप एक कहीं भी नहीं आना चाहिए, कहीं भी नहीं आना चाहिए। आपकी फोटोज बहुत बढ़िया होनी चाहिए सारी की सारी, पर हो सकता है 15 फोटोज है या 20 फोटो है वो सारी की सारी नंबर 1 नहीं हो, उसमें कुछ वीक भी हो सकती है, इट इज पॉसिबल, और होती भी है। तो वो वीक फोटो चल जाएगी पर इररिलेवेंट फोटो नहीं चलेगी। ऐसी फोटो जिसमें कम्युनिटी एलिमेंट नहीं है, जो थीम के अनुकूल नहीं है, वो फोटो एक भी नहीं चलेगी। ये ध्यान में रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आप देखिए, तो कम्युनिटी होना चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी से इसको पढ़ लेता हूँ। विद मॉडरेट, बट अब ये कम्युनिटी दो तरह की होती है। एक कम्युनिटी में क्या है कि साम्यता ज्यादा है और वेरिएशन कम है। एक ये भी हो सकती है। एक कम्युनिटी वो है जिसमें वेरिएशन ज्यादा है। कम्युनिटी जरूर है, वो धागा तो है ही, धागा बिना पोर्टफोलियो नहीं होगा, पर वेरिएशन ज्यादा है। पर वेरिएशन ज्यादा होते हुए भी कम्युनिटी का एलिमेंट वहां विद्यमान है। ये दो बातें ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट है। मैं आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज, जो मेरे नवयुक्त मित्र हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। दोस्तों, जब भी आप कम्युनिटी को देखें तो कम्युनिटी की दो तरह की हो सकती है। एक कम्युनिटी में वह जिसमें कम्युनिटी या साम्यता, साम्यता जो है, समानता है, वो डोमिनेट कर रही है, वेरिएशन कम है। मतलब कम का मतलब है कि उसकी तुलना में। और एक दूसरा पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें कम्युनिटी का एलिमेंट, साम्यता का एलिमेंट डोमिनेट नहीं कर रहा है, वेरिएशन का कर रहा है। आपके सामने मैं दोनों पोर्टफोलियो, दोनों ही बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पोर्टफोलियो के द्वारा आपको इस बात को मैं बतलाना चाहूंगा। पर मोस्ट यही है कि आपकी कम्युनिटी में वेरिएशन जरूर होना चाहिए।
अब ये एक पोर्टफोलियो है एमपीएफ के लिए प्रस्तुत किया गया है, और ये आपका करने वाले हैं नॉर्वे के हैं, और उन्होंने थीम का इसका नाम दिया है द अल्बर्टो। पोर्ट्रेचर है, अल्बर्टो जो नायक है इस पोर्टफोलियो का, जो सब्जेक्ट है उसका उन्होंने नाम दिया है, और बहुत बढ़िया है टाइटल दिया है। ये ध्यान से सुनिए क्योंकि वो सारे के सारे उसी में ही है। द अल्बर्टो सेम बट डिफरेंट फोटो, अल्बर्टो सेम बट डिफरेंट। अब क्या है इस पोर्टफोलियो में कि एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन का पोर्टफोलियो है, एक ही जगह का एक ही जगह का, एक ही तरह की लाइट। देखिए कितनी कॉमनलिटी है, कॉमनलिटी यहां बहुत डोमिनेंट है, पर इस बंदे ने इतनी कॉमनलिटी में भी इसने बहुत बढ़िया ढंग से वेरिएशन दिया है। और इसमें फोटोग्राफर के साथ साथ ये जो सज्जन है अल्बर्टो, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो इतनी क्रिस्प हैं, इतनी स्पष्ट हैं कि वो एक दूसरे से आपके बिल्कुल भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये इनका पहला फोटो है, ये देखिए। अब ये दूसरा, ये तीसरा। तो वेरिएशन जो है वो सारे के सारे चेहरे के भाव भंगिमाओं से हैं। इमोशंस लाने की चेष्टा की है, और जो भाव भंगिमाएं हैं, जो चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसके द्वारा इन्होंने वो वेरिएशन लाने की चेष्टा की है। राजेंद्र जी ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बराबर? यस यस, बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके। मैंने कोशिश यही की है कि अपनी बात सुस्पष्ट हो, इसलिए पोर्टफोलियो भी लगभग वैसे ही मैंने चयन किए हैं। काफ़ी बहुत कोशिश करके अलग अलग लोगों के मैंने ये सिलेक्ट किए हैं जो बहुत प्रॉपर हों, स्ट्रांग हों, बात कहने वाले हों। देख रहे हैं आप, लाइट एक, बहुत बढ़िया, जगह एक, आदमी एक, है ना। और पर भंगिमा के द्वारा इन्होंने 20-20 फोटोज इन्होंने और इस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किए। बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है। शिव जी, ये क्या एफआरपीएस के लिए किया हुआ है? ये आपका है एमपीएफ के लिए। अच्छा, दिस इज फॉर एमपीएफ। ओके। एमपीएफ, एफआरपीएस का तो हैंगिंग प्लान बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ। अब फीएफ में तो मैंने जितने भी 2-3 हैं उसमें मैंने वो देखा नहीं हैंगिंग प्लान। हाँ। बाकी इसमें तो इसलिए ये एमपीएफ का है, लिखा हुआ है, देखो ये एमपीएफ। हाँ, ये एमपीएफ है ना। यस। ये नॉर्वे के हैं, एमपीएफ है। तो एमपीएफ मैं बराबर बोलता हूँ, पहले से शुरू से बोला था मैंने, कोई बात नहीं। अब दूसरा देखिए सर एक सेकेंड, ये सारे जो फोटो है इसमें कॉमनलिटी जो आपने बताई, लाइटिंग एक है, आदमी भी जो मॉडल वो भी एक है, और मुझे और एक कॉमन चीज इसमें जगह भी एक है। हाँ, इसका साइज जो है ना वो भी स्क्वेरिश है सब, सारे के सारे। हाँ वो भी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्टली सारे पर वो साइज माने नहीं रखता। हाँ बराबर, साइज मायने नहीं रखता है। साइज वर्टिकल भी हो सकता है, साइज आपका वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, वो मायने नहीं रखता। हाँ। पर अगर वो हो तो भी कोई बात नहीं, पर जगह है वो एक ही जगह। मैं जिस बात पर एम्फेसिस कर रहा हूँ ना, हाँ। वो एम्फेसिस देखिए, दीवार। यस। ये एक ही दीवार, एक ही जगह, एक ही लाइट कंडीशन, एक ही आदमी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वो लाना, इतनी कम्युनिटी का अलावा। मैं वो इस पर मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। अब दूसरा देखिए,
ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये है आपका वाइल्ड लाइफ। ये पीएसए के लिए दिया गया है, सिल्वर पीएसए के लिए, ठीक है सर। हाँ, और इसमें वेरिएशन ज्यादा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। और कम्युनिटी क्या है मैं पोर्ट के बताता हूँ। Johann Botha's portfolio of wildlife with dominance of variety, देखिए डोमिनेंस किसकी है, डोमिनेंस ऑफ वेराइटी, woven in common thread of wild activity। यहां केवल और केवल एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमनिटी है, और वो है एक्टिविटी। और एनिमल्स बिल्कुल डिफरेंट है, एनिमल्स की सिचुएशन डिफरेंट है, लाइटिंग डिफरेंट है। यानी डोमिनेंस में आप प्लीज मेरी बात को समझिएगा, मैंने आप ये इस पॉइंट में मैंने ये बतलाने की चेष्टा की है कि जो एक थ्रेड होता है, जो एक सूत्र होता है, जो हमारी इमेजेस को एक पोर्टफोलियो की शक्ल देता है, उसमें दो बातें होती है, ये आप नोट करिए। एक डोमिनेंस ऑफ कम्युनिटी विथ वेरिएशन स्लाइटली, ठीक है, डोमिनेंस कम्युनिटी की हो गई, वेरिएशन कम हुआ। एक दूसरा जिसमें डोमिनेंस वेरिएशन की है, वैरायटी की है, और जो कम्युनिटी एलिमेंट है वो डोमिनेंस कम, पर वो थ्रेड जरूर मजबूत है। ये तो वो एक मैंने बताया जिसमें कम्युनिटी डोमिनेंस थी। अब दूसरा इसमें आपकी वेरिएशन वो डोमिनेंट है। ये इनका हैंगिंग प्लान है, और ये मैं जरूर देखो पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया है ये भी। ये इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि जब भी आप स्टेटमेंट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जजेस सबसे पहले जो महत्व देते हैं वो आपके इस पर महत्व देते हैं, आपके इस पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर। इसमें ये क्या कह रहा है कि when you consider life in the wild, you realize that those beautiful action movements are not always just there for us to capture with our camera। वो कह रहा है कि जब आप कोई वाइल्ड एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो थाल में जैसे भोजन परोसा जाता है वैसे हमारे लिए भी पहले से नेचर में परोसा जाएगा कि ये आपके लिए है और आप फोटो खींचिए। ऐसा नहीं होता है। और ये सुनो क्या है, देखो आगे ब्रैकेट में लिखा है ना, रॉ नंबर 1। तो ये रॉ नंबर 1 में एक फोटो है, ये एक फोटो, ये रॉ नंबर 1 है, ठीक है। ये पहला, क्या बढ़िया फोटो है, बहुत शानदार। और दूसरी बात है, अभी उसको मैं आगे चलूंगा। रनिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कुड बी fleeing move from a predator, no energy is wasted, playing is also practicing, and the intense territory encounter between males ensures that only the best genes are used for the future generation, family interaction, reaffirm bonding for survival, row number 2। अब ये 2 नंबर में जो एक्टिविटी बतला रहे हैं वो इनकी एक्टिविटी में आपका हंटिंग का है, आपका खेल कूद का है, आपस में खेलने का है, आमोद प्रमोद का है, वो सारा इसमें बतलाया है। ये इसमें रो नंबर 2 में बात बताई गई है। और सर्वाइवल रिवॉल्व्स अराउंड वाटर एंड फूड एंड बोथ बर्ड्स एंड एनिमल्स मस्ट कम। फिर तीसरा रो में बताया कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाटर को लेकर बताया। और फिर है व्हाट गिव्स द लाइफ टू सम मीन्स डेथ टू अदर्स। एक के लिए लाइफ है, एक के लिए डेथ है, नेचर का यही नियम है।
नेचर का यही नियम है, किसी एक को जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे को मरना होता है। नेचर को आप क्रूअल कहें या जो भी है। अब इसके बाद मैं आपको ये पोर्टफोलियो शुरू करता हूँ। कितना सुंदर है ये बहुत बढ़िया। ऐसे देखिएगा, सर ये ऐसे लग रहा है कि वो सूरज को नहला रहा है। शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, यही बात, अच्छा। यही बात है, यही बात, मतलब यही बात का मतलब यही दिख रहा है, यही हाँ। दिख रहा है। और फोटोग्राफर भी यही बतलाना चाह रहा है। अच्छा। फोटोग्राफर भी यही बतलाना चाह रहा है, वो उसको नहला रहा है। देखो जो उसने कैप्चर किया वो एक्चुअली खुद नहाना है ना। हाँ हाँ। वो उसको नहाना बहुत पसंद होता है, पर उसने क्या कैप्चर किया, वो पहले ये मूवमेंट, और उसको पसंद आया। देखो ये जो फोटोग्राफर है इंटेलिजेंट है, यस। दिल से फोटो लेने वाला है ना। हाँ। अगर वो फोटो दिखाता अपना खुद का स्नान करने का, हाथी का खुद का स्नान करने का, वो एक अलग मीनिंग होता। ये अब बात एक दूसरा है। अब सूर्य को अर्घ दे रहा है ये, हमारी संस्कृति में हम क्या कहेंगे, सूर्य को अर्घ दे रहा है ना। और उनकी संस्कृति में सूर्य को स्नान करवा रहा है। बहुत बढ़िया फोटो है। भागम भाग है, दोस्ती के भागम भाग है। देखिए है कैसा नटखट है, इस नटखट को क्या क्या शानदार एक्शन इसने कैच किया है। बंदर का जो स्वभाव है ना वो बिल्कुल आया है। ये जंगलों में होता है, ये दोस्ती की कुश्तियां हैं। क्या इमोशन है, क्या इमोशन है। बहुत बढ़िया। अब ये फ्लाइट है, फ्लाइट किसके लिए, पानी के लिए। मतलब एनिमल, इसमें एक एनिमल ने लिया, इसमें बर्ड नहीं लिए। एनिमल लिए, डिफरेंट एनिमल लिए, बर्ड्स लिए, डिफरेंट बर्ड्स लिए। वेराइटी की हद हो गई, वेराइटी की हद हो गई। पर बंदे को सलाम, बंदे को सैल्यूट, क्योंकि ये सब कुछ होते हुए वेरिएशन इतना स्ट्रांग है। जो ये कहना चाह रहा है थीम के द्वारा, वो उसने बहुत सक्सेसफुल ढंग से बता दिया। इसके चेहरे में देख, मुंह में कुछ है, छोटा सा पर है इसके मुंह में। हाँ, जो उसने बात कही थी वो सब है। एक का जीवन, दूसरे की मृत्यु, फोर्थ वो। तो ये दो मैंने आपको पोर्टफोलियो बतलाए कॉमनलिटी को लेकर के, जिसमें एक में कॉमनलिटी डोमिनेंट करती थी, दूसरे में आपका जो वेरिएशन है वो डोमिनेट कर रहा है। अब मैं आगे चलता हूं मित्रों, और आगे जो है बहुत बढ़िया बात कही गई है, गो बियॉन्ड सब्जेक्टिविटी। अब यहाँ सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है। सब्जेक्टिविटी के बिना हम बाहर जाएंगे तो कैसे होगा। फोटोग्राफी तो सब सब्जेक्टिविटी से तो होती है भाई। मैं फोटोग्राफी करूंगा मेरे अपने विजन से करूंगा, मेरे अपने सोच से करूंगा। देखिए वो अलग चीज है, यहाँ अलग चीज है। सब्जेक्टिविटी का मतलब मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइकिंग। अब यहाँ आप पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर रहे हैं और ये कहा गया है कि गो बियॉन्ड सब्जेक्टिविटी। मतलब ये है कि अब आप बंधे हुए हैं। पोर्टफोलियो सब्जेक्ट करना ना, आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको एक डिसिप्लिन में बंधना है। अब आपने खुद ने अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधा है, पर आप बंध गए। किससे बंध गए, एक थीम से बंध गए। थीम हमको बांध रहा है। अब एक तो कुछ फोटोज ऐसी हैं बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत फर्स्ट क्लास लाइटिंग है, बहुत स्ट्रांग स्टोरी टेलिंग है, बहुत स्ट्रांग उसमें इमोशनल वैल्यू है, सारी बातें हैं, बहुत स्ट्रांग है। आपका मन करता मैं इस फोटो को लूं, पोर्टफोलियो में डालूं, परंतु वह फोटो उस आपके थीम के साथ मेल नहीं खाती। ये बात यही कही गई।
इसका मतलब यही है। गो बियॉन्ड सब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि आपको जो फोटो बहुत पसंद है, आपके जो फेवरेट फोटोज हैं, वो यहाँ सेलेक्ट नहीं करने हैं। फोटोज वो सेलेक्ट करने हैं जो आप एक थीम को लेकर के चल रहे हैं, थीम को लेकर पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको लेकर करना है। ये इस बात में कही गई, बड़ी अच्छी बात। अब फिर बात कही गई स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ये मैंने आपको बता दिया, 2-3 जो है उनको मैंने बता दिया, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। सर इसमें हाँ। एक सेंटेंस के बारे में थोड़ा बताइए। इसमें लास्ट सेंटेंस जो है ना, उसमें लिखा है कि मास्टर्स एंड एक्सपीरियंस आर्टिस्ट डू नॉट क्लिक। करो अभी 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 मैं ऐसा नहीं, मैं इसको पूरा स्किप नहीं कर रहा हूँ, नॉट स्किपिंग। रुको 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 आप रुको। देखिए, अब ये स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है। एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग जो फोटोग्राफी करते हैं, सैलून में ज़्यादातर हम लोग सैलून में फोटोग्राफी करते हैं। मैंने भी बहुत की है सैलून में फोटोग्राफी। जब सैलून में फोटोग्राफी करते हैं ना राजेंद्र जी, है ना? हाँ सुन रहा हूँ। तो जब सैलून में फोटोग्राफी करती है, सैलून के लिए फोटो भेजते हैं, हाँ, तो हम कौन सी फोटो भेजते हैं? क्या देखते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सेप्टेंस हो, या अवार्ड हो, अवार्ड नहीं हो तो कम से कम एक्सेप्टेंस हो। हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ेंगे तो हमें वो ऐसा हमें और वो होगा, ऐसा होगा। तो हम यहाँ पर हमारा लक्ष्य होता है अवार्ड लेना, नंबर 1। अवार्ड अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम एक्सेप्टेंस आए। उस हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं सैलून के अंदर। वो कैसे होगा? तो यार उसमें जज कौन है? अनिल इरशाद सिंह जज है। अनिल इरशाद सिंह क्या पसंद करते हैं यार? वो आर्ट फॉर्म फोटोग्राफी करते हैं, तो यार कुछ फोटो वो वैसे हमारे होनी चाहिए। क्यों बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ भी झूठ बोलूँ मेरा कान पकड़ लेना। ऐसी हिम्मत नहीं सर हो सकती कभी। तो एक्चुअली हमारा जो सिलेक्शन होता है वो सैलून के अंदर हमारा अपना नहीं होकर के वो दूसरों के लिए होता है, हम अपने लिए नहीं करते। और जब सैलून फोटोग्राफी कर रहे होते हैं और वही हमारा मकसद होता है कि हम आप फोटोग्राफी भी हमारी दिल से नहीं होती, फोटोग्राफी भी हमारी जो हमारा विजन बना हुआ होता है वो हमारे सामने सैलून वाला बना होता है। मुझे ये डिस्टिंक्शन लेना है, मुझे इस डिस्टिंक्शन, अभी मेरा ये डिस्टिंक्शन है, मुझे वो लेना है और मुझे उसकी तैयारी करनी है, तो उस डिस्टिंक्शन के लिए मुझे ये थीम है, मुझे ये फोटोग्राफी करनी है। एम आई करेक्ट? यस सर। तो बिल्कुल सैलून में आपका हाथ सब कुछ बंधा हुआ है, आपकी फोटोग्राफी सब कुछ बंधी हुई है, आपको वो ध्यान में रख करके फोटोग्राफी करनी होती है। आपका अपना कुछ नहीं चलता वहां पर, आपका अपना विजन, आपकी अपनी फिलॉसफी नहीं चलती। हाँ, यदि आप सैलून फोटोग्राफी के साथ साथ, जैसे कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग करते हैं जो सैलून फोटोग्राफी भी करते हैं, पर सैलून फोटोग्राफी के साथ साथ में अपने लिए फोटोग्राफी करते हैं, खुद के लिए भी करते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता, फोटोग्राफी 1963 से कर रहा हूं, कोई पता नहीं, मुझ में और कोई योग्यता है नहीं, सच कह रहा हूं मैं। पढ़ाना और फोटोग्राफी करना, इस दो के अलावा मुझ में कोई योग्यता नहीं है, बहुत वेरी स्पष्ट कह रहा हूं। तो जब से मैंने फोटोग्राफी शुरू की, मैंने फोटोग्राफी को, हाँ उसमें मैं मैगजीन में भी भेजता था, सैलून में भी भेजता था, पर मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, मैं फोटोग्राफी वो करता था जो मुझे अच्छी लगती हो, जो मुझे सुकून देती हो, मैं वो फोटोग्राफी करता था शुरू से। तो कारण यह बात यह हुई कि मेरे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुई। मैं फोटोग्राफ भेजता था, मेरा जो एवरेज था एक्सेप्टेंस का वो 50% था, 50%, उससे ज्यादा नहीं था। यह सच कर रहा हूं मैं आपसे। कभी कभी कहाँ 4 हो जाती थी, तो कहीं कहीं एक भी सेलेक्ट नहीं होती थी, ऐसा भी होता था।
तो पर वो क्या, उसका कारण क्या था कि मैं फोटोग्राफी अपने लिए करता था और सैलून में भी पार्टिसिपेट करता। मैं फिर देखता कोई सैलून में है, अब सैलून में फोटोग्राफी करनी तो मैं कौन सी सेलेक्ट करूं, क्या करूं, ऐसा करता। तो सब कुछ ये होता था। एनीवे, मैं अपने बारे में तो यहाँ बतलाना है नहीं, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सैलून फोटोग्राफी एक अलग फोटोग्राफी होती है और एक अपने लिए फोटोग्राफी एक अपने लिए होती है। तो जो मास्टर्स लोग होते हैं, वो मास्टर्स लोग अपने लिए फोटोग्राफी करते हैं। उनका अपनी एक फिलोसफी होती है, उनका अपना एक दर्शन होता है, उनका अपना विजन होता है। और जिसका जितना विजन व्यापक होता है, सुनिएगा, ये इरेलेवेंट नहीं है, ये अपने पोर्टफोलियो के लिए भी है और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से कहता हूँ। विजन ये इंडिविजुअल फिलोसफी होती है। मैं जब भी कोई फोटोग्राफी की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फोटोग्राफी में 5 इंग्रेडिएंट है: विजन, विजुअलाइजेशन, लाइन, लाइट एंड लाइट। ये 5 एलिमेंट। उसमें जो विजन है वो व्यक्ति की पर्सनल फिलॉसफी है, व्यक्ति का पर्सनल सोच है। वो दुनिया के लिए, दुनिया के बारे में अपना क्या विचार रखता है, वो दुनिया को कैसे सोचता है, लोग उसको कैसे किस रूप से देखता है। अब यदि किसी का विजन जो है वो पॉजिटिव है, वो करुणामय है, वो बहुत वैसा है, वो मदद करने वाला आदमी है, उसके फोटोग्राफ में वो सारी बातें दिखाई देगी आपको। अगर आपका वो विजन वाला आदमी इगोइस्टिक है, स्वार्थी है, अपने के लिए ही कुछ करता है, दूसरों को वो ध्यान नहीं रखता है, तो उसकी फोटोग्राफी, उसके आर्ट, उसके जीवन में, सब में वो विजन दिखाई देगा। तो विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका मास्टर्स लोग जो हैं, उनका जो भी जिसका भी जैसा भी विजन है, वो विजन उसके फोटोग्राफी में होता है। हमें मास्टर्स का वर्क देखना चाहिए, पर मास्टर्स के जैसे ही आपने नकल करनी शुरू कर दी, आप कभी भी उस मास्टर जैसे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसने अपनी लाइफ खपा दी उसमें। उस आदमी ने अपना पूरा जीवन उसमें खपाया है, अपने सोच को उसमें। आप उसकी नकल नहीं कर पाओगे, उसको नहीं पहुंच पाओगे। आप उसकी खाली परछाई बन कर रह जाओगे, छाया बन कर रह जाओगे। इसलिए बार बार कहता हूं, डोंट कॉपी एनी मास्टर। आप इंस्पायर होइए उससे, और आप अपना रास्ता खुद चुनिए। पोर्टफोलियो में यही कहूंगा, यही बात उसमें कही गई। अब मैं फिर वापस आ जाता हूं पोर्टफोलियो पर, और वो क्या, इसमें 2 बातें हैं पोर्टफोलियो। द इंटेंट हेल्प्स व्यूअर टू अंडरस्टैंड द गिवन पोर्टफोलियो फ्रॉम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव। इंटेंट जो है, जो वो व्यूअर है, जजेस के पास जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो वो उनको ये हेल्प करेगा कि ये जो फोटोग्राफर है ये क्या चाहता है, ये इस पोर्टफोलियो के द्वारा क्या कहना चाहता है। वो उसका वक्तव्य उनको हेल्प करेगा, और वो फिर ये देखेंगे कि इस आदमी ने जो वक्तव्य दिया है, क्या ये वक्तव्य उसके साथ मेल खा रहा है। वो जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में वो जो बात कह, यानी एक बात मैं कहूं, उसकी कथनी करने में साम्य है या नहीं है, जो वो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें साम्य है या नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंटेंट जो है, वो एक काम ये करता है, वो एक व्यूअर के बीच में और फोटोग्राफर के बीच में जो गैप है, उस गैप को वह पूरा करता है। दूसरा बड़ा सेकंड जो काम है, वो फोटोग्राफर को खुद को मदद करता है कि जो आपका इंटेंट है, जो इंटेंट उसने लिखा है, अब उसको जो सिलेक्शन करना है, वो सिलेक्शन उस इंटेंट के हिसाब से ही करना है, उसके वक्तव्य के हिसाब से करना है, कि वक्तव्य को जस्टिफाई करने वाला इंटेंट हो। The intent helps viewer to understand the given portfolio from artist perspective. Secondly, some images may be very strong taken individually, but fails to be fit in the unifying thread. In such situation, intent directs artists to be precise and clear in selecting relevant images and arranging them in unified portfolio. Intent should be a precise answer to how and why. यूनिक स्टाइल एंड विजन। देखिए, ये बताना चाहिए कि कैसे उसने किया है और क्यों किया है। कैसे किससे होगा, वो उसका टेक्निक से होगा। वाई किया है, वो उसके विजन से होगा। समझ गए साहब।
तो स्टाइल और विजन ये उसके आंसर हैं दोनों, पर्पज और थीम। ओके ओके सर। कीप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट शॉर्ट, simple and to the point, explaining your vision, your unique style, the purpose of portfolio unambiguously. Avoid the sentences, complex ornamental phrase, verbal jargon which makes portfolio obscure. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए मैंने दो उदाहरण दिए थे आपको, एक तो सालिम अली का पहले वाला, कितना शानदार स्टेटमेंट था, और तीन पॉइंट बताए उसने और तीनों पॉइंट उसी प्रकार से दूसरा जो था इस सज्जन का था, जोनाथन जो भी है ये, इसका बहुत बढ़िया इसने रो वाइज जो इंटेंट बताया, और उसी प्रकार इंटेंट जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट वो बहुत शॉर्ट स्वीट और रिलेवेंट होना चाहिए। कीप स्टेटमेंट इन शॉर्ट स्वीट हो गया सर। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, वो है क्वालिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग एंड एंड विद स्ट्रॉन्ग। मतलब पोर्टफोलियो में जो शुरू के कुछ इमेजेज हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, और आखिर के जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर थोड़ी कमजोर है तो बीच में हो, ये साइकोलॉजिकल वो बताए। फिर सीक्वेंसिंग और ओरिजिनली या नोवेल्टी, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक को आपको शॉर्ट में बताता जाऊंगा। अब है क्वालिटी। क्वालिटी का क्या है, वो टेक्निकल, मतलब आपका लाइटिंग कंडीशंस है, कलर है, कंट्रास्ट है, साइज है। मैं पढ़ लेता हूँ इसको। द सेलेक्ट ओनली दोज इमेजेस विच आर क्वालिटेटिवली एंड टेक्निकली सुपीरियर ओवर अदर्स। अंडर टेक्निकल एक्सेलेंस टेक नोट ऑफ एक्सपोजर, करेक्ट होना चाहिए, शार्पनेस, हाँ अगर आप ब्लर चाहते हैं इंटेंशनली तो वो अलग बात, वो आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो शार्पनेस, कंपोजिशनल एक्सेलेंस, रूल ऑफ थर्ड है, और बैलेंस है, ये सारे के सारे। प्लेसिंग ऑफ सब्जेक्ट 1/3 पोजीशन बहुत जरूरी, वेल बैलेंस्ड पिक्चर विद कलर कॉन्ट्रास्ट, साइज, ये सारे के सारे, और थीम के आधार पर ये सब होनी चाहिए। ये आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, समझ गए साहब, कोई डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट नहीं हो। मैं कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेता हूँ मैं। Select only those images which are qualitatively and technically superior over others under technical excellence. Take note of exposure, sharpness, avoid over sharpening. हाँ, ये जो ओवर शार्पनिंग करते हैं ज़्यादातर ये मत करिए, ये जो बहुत होशियार जजेज होते हैं उनकी आँख से बच नहीं पाती है और वो चली जाती है। And compositional excellence like placing the subject at 1/3 position, well balanced picture with color, contrast, size, no visible noise unless it is desirable, with theme, natural color, without color cast, clean background, without distracting element, show details in both highlight and shadow area, without visible processing sign of halo on the edges, correct point of focus, like the eyes for portrait, use line and light properly. ठीक है साहब। अब मैं एक अपने इंडियन है और ये मुझे बहुत पसंद है इनका, ये जो है पोर्टफोलियो। ये दोस्तों मैं पोर्टफोलियो बतलाने से पहले मैं इनमें जाऊंगा, इनके इंटेंट पर जाऊंगा, और देखिए क्या इनकी बात है। देखिए ये स्टेटमेंट है कुसुमा प्रभाकर जी का खुद का, मैं पहले इसको पढ़ रहा हूं, ऑथर्स कमेंट है। My journey to FRPS started without my knowledge when I had spent my 1993 यार इसको क्या करूं, उसका वो एरो को क्लिक कीजिए, ऊपर वाला एरो सर। हाँ बार आ रहा है, इसको बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, my journey to FRPS started without my knowledge when I had spent my 1993 birthday क्या in total silence at home for the destitute। वो खुद चले गए थे एक ऐसी मनस्थिति में, डिप्रेशन में, which housed the mentally and physically challenged। My finances forced, बहुत ऑनेस्टली इन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया। My finances forced me to use only 8 rows of
date expired 35 mm black and white film and one fresh film, all the 400 essay. दोस्तों, जो आजकल डिजिटल कैमरे में मैं बहुत स्ट्रेस दे करके, बहुत जोर दे करके उन मेरे नवयुक्त मित्रों को कह रहा हूँ, कान खोल करके सुने। बड़ी कड़वी बात है, पर मैं कहूँगा, टीचर हूँ, मैं भी अपनी आदत से छूटता नहीं हूँ। तुम हजारों क्लिक करते हो, हजारों में तुम्हें 2-4 फोटो अच्छे आ जाते हैं, संयोगवश बिना तुम्हारे नॉलेज के, और तुम्हें वो अवार्ड मिल जाते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब कर देते हैं। तुम अपने आप को लॉर्ड साहब समझने लग जाते हो। मास्टर्स जो अपना लाइफ खपा देते हैं फोटोग्राफी में, उनको तुम कुछ नहीं समझते हो। ये ऐसे उन लोगों के लिए है। इस आदमी को देखिए, ये आदमी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। इसने आदमी ने FRPS जैसा कवर्टेड इतना महत्वपूर्ण जो हासिल किया है, वो उसने क्या किया, केवल मात्र 8 रोल थी उसके पास में, एक्सपायर डेट की थी। यूजिंग ओनली डे लाइट आई पुश देम टू 1600 and 3,200 essay while exposing and processing. In all, I made around 300 exposure. खाली 300 एक्सपोजर बनाए, उसमें उन्होंने 8 महीने 25 साल। दोस्तों, मैं इस आदमी को सैल्यूट करता हूँ, इस आदमी को नमस्कार करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ। ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। अब उसमें से इसने ये 20 फोटो निकाले हैं। द पिक्चर बिकम प्रेशियस व्हेन द फोटोग्राफर एंड हैड समथिंग टू से एंड सेड। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसको स्कैन करवाया, और स्कैन करवा करके इनकी जो मृत्यु हुई उससे केवल मात्र साल भर पहले ही इन्होंने इसको सबमिट किया था। मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ हुआ है। अब मैं पहले इसका जो स्टेटमेंट है इंटेंट वो मैं बतलाता हूँ। अब देखिएगा, बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एवरी लिविंग बीइंग शैल हैव ए फादर एंड मदर बाय नेचर्स लॉ, बट फॉर ए डेस्टिट्यूट where they are lost, they are mentally and physically challenged and are rejected by our own families. Their sufferings are personal but universal too. When I see their negation of life, I had to reach inside myself into my own experience and interact with my similar knowledge, draw on emotions they evoke in me and translate them into pictures for the people to feel. देखिए, उन्होंने पहले खुद फील किया, उस बात को फील किया, और फील करके फिर उन्होंने वो फोटो के माध्यम से उन्होंने, यही फोटोग्राफी है। आई यूज डीपर टोन्स, देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के लिए। आई यूज डीपर टोन्स लो की टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिजेक्शन। हमें मालूम होना चाहिए लाइट टोन्स किसके लिए हम यूज करते हैं, और लो टोन या की वो है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब मैं ये जाता हूँ, देखिए इनके फोटोज हैं, मार्वलस फोटोज हैं, क्वालिटेटिवली, टेक्निकली, इमोशनली तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, इमोशनली इनका कोई मुकाबला नहीं है। और ये फोटोज देखिए, ये इनका FRPS के लिए किया गया है। इन्होंने 2018 में प्रस्तुत किया। देखिए कब फोटोज लिए थे, 25 साल बाद इन्होंने प्रस्तुत किया है, देखिए। और शायद इसके साल भर बाद में इनकी डेथ हो गई थी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। ये इनका हैंगिंग प्लान है। अब ये फोटोज देखते जाइए आप, इमोशंस, लाइटिंग देखिए, क्या लाइटिंग है, क्या टोन है रिच, और क्या इन्होंने इसको किस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है। प्लेसिंग देखिए, पीछे वाइट और ये सारा ये लाइट दिखाइए, और बढ़िया ये बैलेंस कर रहे हैं, ये बैलेंस, ये तीन एक जो लाइन बन रही है, डायगोनल लाइन बन रही है। एक एक फोटो की मैं अगर करूं बहुत समय लग जाएगा, पर बहुत एक एक फोटो में बहुत बढ़िया है। ये आप देख लेना, दिस वन एंड दिस वन।
ये लाइट और बीच में डार्क, बहुत टेक्निकली वेरी। यहाँ चेहरा नहीं है, इमोशन है। दिस इज द सिंबल ऑफ इमोशन, दिस इज द सिंबल ऑफ इमोशन। आइज देखिए, आइज देखिए, देखिए आप, और जो आइज है उसी पर लाइट है, उसी को क्या, बहुत बढ़िया। हल्की सी डिटेल यहाँ भी है, हल्की सी डिटेल यहाँ भी है, यही ये टेक्निकल एक्सीलेंस। यहाँ देखिए हेड के पीछे ही आ रहा है, सैलून वाले कह देंगे अरे ये तो डिस्टर्ब कर रहा है, पर यहाँ ये जो आपकी इमेज है वो उसके फेथ को, उसके विश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहाँ रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट, बहुत रेलेवेंट है। वाह, क्या वंडरफुल। क्या इशारा कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोटो, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या लाइटिंग है, क्या क्या ये कोई कहकर थोड़ी किया है इनको, वो अपने आप संकोच कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, और शर्म करते करते उन्होंने ऐसा किया है। किसी को इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, बातचीत करते रहे, बातचीत करते करते कोई बातचीत कर रहा है और वो सारा फोटो ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, कितना शानदार फोटो। मित्रों, ये बहुत एक्सेलेंट पोर्टफोलियो है, आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है प्रभाकर कुसुमा का, टेक्निकली भी, इमोशनली भी बहुत बढ़िया, और इनकी अपने लाइफ से खुद के जुड़ा हुआ, और इसको बहुत शानदार। और ये मैंने पढ़ लिया आपको, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वालिटी के बाद में है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि शुरू से लेकर के, पहली फोटो से लेकर के आखिर फोटो तक सारी की सारी क्वालिटी के लिए, थीम के लिए और विजन, उसका स्टाइल के लिए, वो सब उसको कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो सब बतलाने वाली होनी चाहिए। कोई भी फोटो क्वालिटेटिवली कमजोर नहीं हो, थीम से हट करके नहीं हो, और वो जो उसकी स्टाइल है, उसका जो स्टेटमेंट है, उससे अलग हट करके नहीं। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कहलाती है। आपका जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक फोटो से लेकर के 20वें फोटो तक सारे के सारे में क्वालिटी वाइज, थीम वाइज और स्टाइल वाइज बिल्कुल एकदम से होना चाहिए। ये आपका ARPs के लिए दिया गया पोर्टफोलियो है। ये लो रिजोल्यूशन की फोटोज है, क्लियर नहीं है, पर ट्रेवल की है, और आपकी ट्रेवल की फोटो देख लीजिए, इसमें कंसिस्टेंसी है, वो मैं बतला रहा हूँ। सारे साथ देखते जाइए। ये एक राजस्थान के गांव में, पर्टिकुलरली जो बिश्नोई गांव में एक एक्टिविटी होती है, उसको कहती है अमल घोलना। अमल घोलना, अमल बनाते हैं और हथेली लेकर के वो जो भी आता है उसको मनवार करते हैं, और वो मनवार लेनी होती है, नहीं तो वो अपमान माना जाता है। ये सबसे बड़ी मनवार होती है। अपने यहाँ तो जैसे कोई मिठाई खिलाना है या वो करना है, यहाँ पर वो अमल की बहुत बड़ी मजा है। भोजन बन रहा है, भोजन खाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। देखो, भोजन बन रहा है, खिलाया जा रहा है और खाया जा रहा है। छोटी छोटी बातें हैं और ये बहुत मायने रखती है। ये सब बहुत स्टैंड कर, पढ़ाई हो रही है। गाय, अपनी इंडियन कल्चर में गाय का बहुत महत्व है ना। वो यहाँ हाथ जोड़ा जा रहा है और यहाँ गाय भी दिखाई। देखो, फोटोग्राफर जो है वो बहुत वेल अवेयर्ड है इंडियन कल्चर के लिए, बहुत वेल, अच्छी तरह से, और उसी बात को बतला रहा है। देखिए देखिए, और किस ढंग से वो बुल है, अपने बैल हैं, वो नंदी देवता है, वो सामने खड़े हैं, लोग बिल्कुल बेपरवाह, डरते नहीं है। ये रघुवीर सिंह की स्टाइल है वैसे प्रेम का जो उन्होंने दिखाया है। हमारे रघुवीर सिंह राजस्थान के ही रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं, वो है राजस्थान के ही थे, बड़े नामी
फोटोग्राफर थे। ये फेस्टिवल है। तो ट्रेवल का ये एक अच्छा बढ़िया है जिसमें सारी बातें करते हैं। अब है ये कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या है कि फोटोएं आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है कि कहीं गैप नहीं लगता। और मुझे इस पॉइंट को बताने के लिए हमारे जो मित्र हैं अनिल विशाल सिंह है, उनका ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लग रहा है। कलर और फॉर्म इनका ये थीम है। ये इन्होंने 2009 में MPF के लिए प्रस्तुत किया था और वो सक्सेसफुल रहे उसमें ये। और 20 फोटो में है, 20 फोटो जो हैं कहीं भी अपने उस थीम से हटी हुई नहीं है। और एक जिस प्रकार से इन्होंने इसको एक दूसरे के साथ में रखा है वो बिल्कुल एकदम से जुड़ी हुई है। ये फोटोज हैं, देखिए इनकी, ध्यान से देखिए। और खुद अगर बैठे हुए हैं विशाल सिंह जी तो देखो भाई, और चले गए हैं। देख रहा हूँ सर। देख, नहीं हाँ नहीं तो यार, सर हूँ। हाँ तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके फोटोज वाकई बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे ढंग से आपने इनको रखा है। कोहेसिवनेस बहुत जबरदस्त है। एकदम से आपने उसको फेविक्विक से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? वो फेविक्विक आती है ना, अब ये बिल्कुल कहीं हट नहीं सकती। फेविक्विक से जोड़ा है इन्होंने। एक एक फोटो को ध्यान से देखो आप, बहुत बढ़िया, बहुत। एक भी फोटो इनकी ऐसी नहीं है कि जहाँ फॉर्म नहीं हो या कलर नहीं हो, कोई एब्सेंस हो, नहीं, सब के सब बहुत बढ़िया। ये इनका फॉर्म एंड कलर का अनिल विशाल सिंह का पोर्टफोलियो जो MPF के लिए दिया था। अब मैं यह वो है, समय बहुत हो रहा है पर मैं बहुत जल्दी अब कर रहा हूँ। आपका स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग एंड एंड विथ स्ट्रॉन्ग। आप शुरू करिए। अच्छा तो ये है कि सारे 20 फोटो है तो 20 ही, या 15 है तो 15 ही, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग हो, पर ऐसा होता नहीं है। सारे नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी कमजोर हो वो इस ढंग से आपको रखिए कि आपका सीक्वेंस भी टूटे नहीं और वो बीच में आ जाए। ऐसे इस ढंग से आपको उसको प्रस्तुत करिए। और अब इसके बाद में सीक्वेंसिंग भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा सीक्वेंस रखेंगे कि फोटोज में एक तारतम्यता हो, एक स्टोरी बराबर चल रही हो। स्टोरी है तो स्टोरी का कहीं भी बीच में गैप नहीं आएगा। और इस सीक्वेंसिंग में मुझे इनका, अपने सिन्हा साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं अपने हमारे, उनका जो पोर्टफोलियो है उन्होंने भी ये 2010 में सक्सेसफुल प्रस्तुत किया था। MPF है वो चिता को लेकर के है, वरुण सिन्हा का पोर्टफोलियो चिता। अब चिता, सारे चित्ते इसमें है। और अब ये देखिएगा उनका पोर्टफोलियो, ये ताक में है। पहले फोटोज में ये सारे तक रहे हैं, 3 फोटोज ताक में। अब ये चार्ज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बराबर सीक्वेंस भागने का है। सारा का सीक्वेंस चल रहा है, एक बराबर स्टोरी चल रही है। ऐसा चल रहा है जैसे फिल्म चल रही है ना। अब ये स्टिल फोटोज हैं पर स्टिल फिल्म एक फिल्म के रूप में चल रहे हैं सारे के सारे। देखिए ये आ गए और ये देखो नाखून निकले हुए हैं एकदम से बाहर हैं। और ये बेचारा कॉमन, बहुत बड़ा मार्मिक पिक्चर है। मुझे ये जो फोटो है बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। छोटा सा मेमना बेचारा। और अब ये गड़ने, क्या है पॉइंट देखो आप, अगले क्षण में ये नाखून इसमें कोमल मांस में ये गड़ने वाले हैं। बहुत मार्मिक, जीवन मृत्यु का एक बहुत बढ़िया। पकड़ में आ गया, देखिएगा सीक्वेंस बराबर चल रहा है, बराबर सीक्वेंस चल रहा है। गर्दन दबोच ली गई। अब और लोग आगे दावत उड़ा रहे हैं। जो वो स्ट्रॉन्ग है वो कैसा देख रहा है कि अकेला अकेला खा रहा है, अकेला जीम रहा, पुट्ठा जीम लिया। अब देखो कोई देख रहा है दूसरा, कोई और नहीं आ जाए। छीना वो आ गया है, छीना झपटी शुरू हो गई। सीक्वेंस बड़ा चल रहा है, एकदम से एकदम सीक्वेंस चल रहा है। जो जिस बात का उसको डर था वही हुआ और ये हुआ। अब ये फोटो देखो आप, छोटा सा जो मुंह में लेकर के, बहुत स्ट्रांग फोटो है। इस स्ट्रांग फोटो के साथ मैं ये फिर आपके ये अब आपस में दोस्त हैं, दुलार रहे हैं। अब खा पी लिया
मौज मस्ती, भरपेट मौज मस्ती, ये मौज मस्ती हो रही है। और अंत में बहुत इमोशनल फोटो माँ और बेटी का, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत अच्छा सीक्वेंसिंग का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। अब एक नवीन बात होती है, कुछ अलग हटकर के बात होनी चाहिए। वो हमारे एक बंगाल से हैं, मित्र हैं शंभू दास, और शंभू दास का MPF का 2013 में इन्होंने किया। ये दीवार पर, पेड़ पर कुछ शक्लें जो दिखाई देती हैं उनको इन्होंने कैच किया है। हाँ जरूर इन्होंने कुछ आर्ट वर्क, कुछ फोटोशॉप वर्क किया जरूर है, पर वो चलता है, वो ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। उन्होंने जहाँ वहाँ प्रस्तुत किया है वहाँ पर ये इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ ऐसे वो अलाउ है, तो वो कोई बात नहीं है। और बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने अपनी आर्ट दिखाई है। ये MPF के लिए 20 फोटोज हैं, और 20 फोटोज देखो सबका अलग थीम एक ही है, तो जो या दीवार पर या वो, और एकदम ह्यूमन और इमोशंस भी है सब में, किसमें कौन सा इमोशन है, किसमें कौन सा है, और इमोशंस भी है। बहुत बढ़िया। तो मित्रों, लास्टली बिफोर सबमिटिंग such portfolios of successful photo artists on websites of FIEP, FRPS, PSA, get inspired by them and prepare your portfolios in your own way with difference. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने समय तक यहाँ मेरे बैठे रहे मित्रों। मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है अब यहाँ पर एक तरह से समाप्त होता है। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपका वीडियो ऑन करेंगे सर अभी? हाँ करता हूँ सर। हाँ वीडियो करना है ना मेरा, तो करता हूँ सर। ये देखना पड़ेगा कहाँ चला गया, शेयर स्टॉप करना पड़ेगा। बंद हो गया वीडियो। हाँ नीचे 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 नीचे। बेटा वीडियो कटा है, वीडियो आ नहीं रही है, वीडियो हाँ? हाँ तो ये स्टॉप शेयरिंग करूं क्या? हाँ करिए स्टॉप शेयरिंग करूं? हाँ करिए सर। और अब अभी वीडियो ऑन कीजिए अभी। यार कौन बुलाने कौन कौन? अरे यार ये नहीं बुला, राहुल हम तो देख वीडियो दिखते यार। अब हमेशा प्रॉब्लम आवे वीडियो की कर, वो वीडियो हमारा जो है कटे है, वीडियो कटे है। आप बताएंगे थोड़ा वीडियो कहाँ दिख रहा है मुझे? आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? नहीं वीडियो कहीं नीचे है, लेफ्ट साइड में बॉटम में आता है, लेफ्ट साइड बॉटम। हाँ वो नहीं आ रहा है बॉटम, ये क्या कर रहे हैं, ये बराबर छिप जाता है। आपके ग्रैंड डॉटर को बुलाइए। अरे वो सब बाहर चले गए। यही तो बात है यार। आप कर्सर नीचे लेंगे, कर्सर नीचे हाँ ले आया, मैं ले आया साहब, ले आया। कर्सर नीचे लेंगे तो आपको लेफ्ट लो नहीं दिखा रहा है, नहीं दिख रहा एक है। म्यूट है और बाद में एक वीडियो का है। हाँ वो मैं समझता हूँ वो दिख रही वो, पर वो इसमें आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है? आप कर्सर घुमा सक रहे हैं? वीडियो स्टार्ट करने के लिए उसके घुमा ऊपर रहा क्लिक मैं, करेंगे तो आ जाएगा। घुमा रहा हूँ देखो, घुमा रहा हूँ, कहीं नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कहीं आ रहा है यार। और कोई बता, राहुल को नहीं, राहुल में नहीं है। अरे यार इसको बंद करूँ एक बार, एक बार शायद वीडियो आ जाए। नहीं आ रहा साहब मुझसे, तो ये हमेशा गड़बड़ होकर देता है इसमें। कॉपी टेक्स्ट, टॉक टू कंटेंट्स,
छोड़िए साहब, जो भी है क्या करें, आप पूछिए कोई आपका पूछना आपका प्रेजेंटेशन सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोग दे रहे हैं। हाँ जी जी, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू आपने साहब बहुत बड़े बड़े लोगों का अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो दिखाया है। जी। हाँ, एक्चुअली इसी तरह का हम लोग को गाइडेंस चाहिए था। हमारे जो सीनियर हो, जूनियर मेंबर हो, जो लोग भी एक्सपीरियंट है, जी और उन लोगों सबके लिए एक प्रेजेंटेशन चाहिए था। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जी। तो आपका और अनिल रिसाल सिंह जी का चर्चा चल रहा था, किससे बोले बोल के हाँ हाँ, तो आपने प्रेजेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, रिसाल सिंह साहब ने आपको रिक्वेस्ट बताया करते हैं कि और कभी हाँ, प्रेजेंटेशन दीजिए सर। सवाल पूछना है। जी हाँ जी, देखिए, मेरा सर से मेरा सवाल है। जी जो आपने पोर्टफोलियो दिखाया, ठीक है, जी तो ये पोर्टफोलियो में आपने कहा कि सारे पिक्चर्स जो है आपकी थीम से रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, जी ओके। जी तो मेरा ये सवाल है कि जी जी बोलिए। हाँ जी, आवाज गया। हेलो। हेलो। बोल रहा हूँ कि जो फोटो ऐसे है और आपने जो पोर्टफोलियो दिखाया है, वो जी आर द सेम और दे डिफरेंट? हाँ जी जी बोलिए। नहीं, मैं ये समझ में बोल नहीं रहा है हूँ, क्वेश्चन आपका। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जब पोर्टफोलियो के बारे में बताया और कहा कि सारे जो जी आपका पोर्टफोलियो में पिक्चर्स है, वो सब एक दूसरे से मिलते जुलते, मतलब रिलेवेंट होने चाहिए थीम के मुताबिक। तो जी फोटो एसे में और आपके पोर्टफोलियो में क्या फर्क हुआ फिर? आर दे सेम और जी आर दे डिफरेंट? फोटो सर, उनका कहना है कि फोटो ऐसे होता है और एक जी। पोर्टफोलियो होता है, तो दोनों में क्या समानता है या क्या डिफरेंस है? अरे तो फोटो ऐसे में भी तो वही बात है। फोटो ऐसे में भी तो, ऐसे में आप कोई थीम को लेके चलेंगे ना। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं ना? तो ऐसे में आप क्या कलेक्ट करेंगे? फोटो ऐसे में क्या करेंगे आप फोटो ऐसे बताइए? बेसिकली आप एक स्टोरी बनाते हैं ना, फोटो ऐसे में आप एक तो स्टोरी बनाएंगे ना, तो वो किस आधार पर बनाएंगे प्लीज बताइए। आप फोटो स्टोरी बनाएंगे, कोई थीम देकर ही तो बनाएंगे ना। हाँ हाँ, तो बस फोटो ऐसे भी ऐसा ही है, पोर्टफोलियो भी ऐसा ही है, ओके लगभग एक समानता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। ओके ओके। अब उसमें पोर्टफोलियो में एक लिमिटेशंस होती है आपको। कोई जहाँ पोर्टफोलियो मांगते हैं, भाई हमें इतने फोटो चाहिए, कोई थीम बेस्ड कॉन्टेस्ट हैं आपके, तो उस थीम बेस्ड कॉन्टेस्ट में वो कह रहे हैं 5 से 10 हों। आपके डिस्टिंक्शन है, उसमें 10 चाहिए, किसी में 15 चाहिए, किसी में 20 चाहिए, ये चाहिए, उसमें सारा थीम वो दिया हुआ होता है। अब फोटो ऐसे में है, वो आपको सेलेक्ट करना है, तो फोटो ऐसे क्यों बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं, आपको डिसाइड करना होगा, या आप कोई मांग रहा है तो वो कर रहा होगा, बात वही है। अब फोटो ऐसे में आपको कितने फोटो लेने हैं, 20 लेने हैं, 25 लेने हैं, जो भी लेने हैं, समझ गए ना मेरी बात आप? ओके, हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो फोटो ऐसे भी तैयार करेंगे ना, वो तैयार ऐसे ही करेंगे जैसा कि आप पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, उसमें जो तैयार करने के बाद वही है। अब नाम उसको, वो जो फोटो ऐसे है, अब वो ऐसे आप जैसे आप ही हैं, आप कोई भी ऐसे बना रहे हैं, आपको जो कहा गया है कि भाई आपको अपना खुद का कुछ दिखाना है, आपको खुद का अपना जो वर्क है वो दिखाना है, आपको खुद का वर्क दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, आपकी खुद की जो स्टाइल्स है वो आप करेंगे कि मेरी ये स्टाइल है, मैं आप क्या फोटोग्राफी करते हैं, किस ढंग की फोटोग्राफी करते हैं, उसको लेके दिखाएंगे, है ना? तो वो अलग अलग बात है। थीम ऐसे में भी होगा, पोर्टफोलियो में भी होगा, अरेंजमेंट उसमें भी ऐसे में भी होगा, इसमें भी होगा, और कोई बात नहीं। और बोलिए साहब। शिवजी हाँ सर, बोलिए। हाँ जी ज्यादा करके जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं, उनको जी। पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक दिक्कत हमेशा आती है कि कौन से विषय का वो चुने, सब्जेक्ट क्या चुनना चाहिए, ये उनको जरा उसमें हाँ दिक्कत होती है, तो जरा उसमें गाइड कीजिए देखिए, जरा। हाँ। अरे बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। उनको मैं यही कहूँगा, वो जो कौन सी फोटोग्राफी करते हैं बढ़िया ढंग से, वो विषय जिनमें उनकी महारत हासिल है। ये मत सोचे कि
ये पोर्टफोलियो सरल है, इसमें मैं करूंगा तो मुझे डिस्टिंक्शन जल्दी मिल जाएगा। मैं तो ये सलाह नहीं दूंगा, मैं ये सलाह कभी नहीं दूंगा। मैं जो सलाह दूंगा मैं वो दूंगा कि आप पोर्टफोलियो के लिए थीम वो करें जो पोर्टफोलियो, जो फोटोग्राफी आप किया करते हैं, जिसमें आपकी महारत हासिल है, जिसमें आपके फोटो जिसमें एक्सेलेंट है, हर लिहाज से जो बहुत बढ़िया है, वो आप करें, वो थीम चुने। जैसे थोड़ी देर के लिए आपको आरपीएस का कोई लेना है, अब आरपीएस में वहाँ थीम दिए हुए हैं, वैसे अच्छा, वहाँ अलग अलग जेंडर दिए हुए हैं, जैसे आपका ट्रेवल दिया हुआ है, आपका कई सारे दिए हुए हैं, तो आपको एक तो वो लेना पड़ेगा। अब वो लेकर के फिर आपको चुनना पड़ेगा कि इसमें फिर मैं कौन सी किस तरह की फोटोग्राफी करूं, तो वो आप अपने हिसाब से फोटोग्राफी करें। तो राय तो आपके एआरपीएस के लिए तो वहाँ थीम दिए हुए होते हैं, एमपीएफ के लिए करना है वो आप खुद चयन करिए, मुझे किस पर लेना, किस पर करना है वो आप करिए, ठीक है ना। पीएसए है जैसे, उसमें भी आप अपना थीम ले सकते हैं, कर सकते हैं। पर जो भी लें वो थीम के बारे में आप बहुत बहुत क्लियर होने चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसका स्वरूप आपको मालूम होना चाहिए, और सारे फोटो जो है वो आपके थीम से मिलने, आपके थीम को जुड़े हुए सिलेक्शन होना चाहिए, और वो आपको जो इंटेंट है वो उसको जस्टिफाई करने वाला होना चाहिए। ये मैं और बोलिए सर। हम लोग भी पीएसआई में ऐसे ही कुछ करते हैं। हर महीने हाँ हम जी। मेंबर्स की कंपटीशन लेते हैं, कलर मोनोक्रोम, और जी हर हाँ, तीसरे महीने एवरी क्वार्टरली हम लोग एक थीमेटिक कंपटीशन रखते हैं। बढ़िया। हाँ, तो इसका पर्पस यही है कि लोगों को कोई थीम के ऊपर सोच के काम करने की आदत हो। तो अभी जो जून महीने की हमारी कंपटीशन हुई उसमें हमने थीम दी थी लाइट एंड शैडो, और इसके पहले की हमारी कंपटीशन हुई मार्च महीने में, उसने हमने थीम दी वीडियो। थी फेस मास्क, क्योंकि लोग बाहर घूम नहीं पा रहे थे, लॉकडाउन था और हर एक को फेस मास्क तो पहनना ही पड़ता था, तो वही हमने चुना और फेस मास्क के ऊपर हमने कंपटीशन ली थीमेटिक की, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा घर में बैठ के बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो एक हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को थोड़ा एजुकेट किए करें, कुछ उनको सोचने का थोड़ा मौका दे किसी भी विषय पर, और ये करते हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा, हर साल हम लोग इनवाइट करते हैं पोर्टफोलियो से, हमारे मेंबर्स से, तो ठीक है 10 फोटो 15 फोटो की हम लोग इनवाइट करते हैं पोर्टफोलियो। जी। तो इस साल भी मैं सारे पीएसआई के दोस्तों को कहूँगा, इसकी अनाउंसमेंट हम लोग मंथ ऑफ सितंबर में करेंगे, और इसका जी। सबमिशन आपको करना होगा 15 नवंबर तक। तो शिवजी जोशी ने जो इस तरह से हमको सबको समझाया है, तो मुझे आशा है कि बहुत जानकारी सभी को मिली है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अभी से आप शुरू कीजिए, किसी सब्जेक्ट को ढूंढिए, उसके ऊपर अभी से आप काम करना शुरू करिए, ताकि हाँ, नवंबर तक आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से आपका हो जाएगा। और ठीक बात। आपको मदद करने के लिए सारे सीनियर जो मेंबर्स है पीएसआई के, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये हमारी कोशिश थी, इस विषय में हम लोग कुछ इतने सीनियर शिवजी जोशी उनसे कुछ सुने। मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल दिसाल सिंह जी का। जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने मुझे बोला कि आप शिवजी जोशी से पहले ये वेबिनार लीजिए, क्योंकि उनके पास ये सारा मटेरियल रेडी है। और ये इसी कड़ी को हम दोहराएंगे, अगले महीने दोहराएंगे, जिसमें अनिल दिसाल सिंह भी इसी विषय को समझिए, इसके दूसरा हिस्सा रहेगा इसी वेबिनार का। तो हम लोग अनिल दिसाल सिंह जी से भी इसी विषय में हम लोग और जानकारी लेंगे। और ठीक। अगला अगला फ्राइडे का हमारा जो वेबिनार है, वो हमारे मेंबर है सौरभ भट्टाचार्य जी, उनका भी सक्सेसफुल आरपीएफ पोर्टफोलियो है, वो हमको दिखाने वाले हैं। ठीक। तो इस विषय में हमारी सारी कोशिश जारी है कि हमारे मेंबर्स को अच्छी जानकारी मिले। और बहुत आपने जो डिटेल जानकारी मालूम हो जाएगी, सारी डिटेल, हाँ सारे हाँ हाँ सब। हाँ हाँ ये हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, तो बहुत बढ़िया, ये सीरीज हम चला रहे। बहुत और अच्छा। आपने तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सरल तरह से हमको आज समझाया कि कैसे किसी विषय को कैसे हैंडल करना है, क्या सिमिलरिटीज होनी चाहिए, सारी बारीकी से आपने बताया, और बहुत सरल तरीके से आसानी से आपने समझे। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पीएसआई की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद जितने सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े,
उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे सारे आगे के वेबिनार्स में हम हमसे इसी तरह से हमसे जुड़े रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड मेरे हाँ, पुराने मित्र यहाँ दिख रहे हैं मुझे, पुराने हाँ, मित्र हाँ। हैं। मोदी जी, हाँ, अरे मोदी जी, मेरे बहुत बहुत पुराने मित्र। अच्छा सर, अच्छा। थैंक यू मोदी जी। मोदी जी म्यूट में है आप, आर एम मोदी म्यूट है आप। अन्य कोई बात नहीं, मैं हाथ उन्होंने देख लिया मुझे। ओके सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से सुना, बहुत सहन शक्ति रखी, टॉलरेंस रखी, कितना लंबे समय तक सुना। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आपके थ्रू रूबरू होने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू and good night to everybody. Thank you so much. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. शिवजी सर, थैंक यू। मैं विश्वास मौर्य सर का स्टूडेंट हूँ। बहुत पुराने मित्र, बहुत पुराने मित्र। सर जी, मीन्स बताने के लिए थोड़ा दुखद है कि सर तो ये हुआ, लेकिन आपका नाम जैसे ही सुना हम लोग ज्वाइन हुए, क्योंकि आप फ्रेंड है तो याद तो आती है। और वो हर बिल्कुल हर बार आपकी डालते थे और हमको एक्सप्लेन करते थे कि बाकी सबकी तरफ से आपको नमस्कार सर जी। थैंक यू। आह्लाद पारकर या बाकी श्याम मंच, अच्छा और पूरा ग्रुप है तो उनकी तरफ से आपको नमस्कार। सर आपसे एक निवेदन है। जी बोलिए। आपसे एक निवेदन है कि आज तो आपने पोर्टफोलियो के बारे में बताया। हम आपकी जो अपनी फोटोज हैं जिसमें आपने राजस्थान का ये मरुस्थल, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के मतलब जो शहरों में गलियां, वो प्रेजेंटेशन भी हम देखना चाहेंगे आपसे। कभी जब अवसर आएगा आप बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। जरूर हम रिक्वेस्ट करेंगे उसमें क्या दिक्कत है? हमको ना कभी नहीं कहेंगे, इतनी तो मुझे ये है। जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट।